Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a games and tournament based set which I've taken from previous year's SimCat, and the set says the Champions Trophy is a cricket tournament played among the top six teams: India, Australia, Pakistan, New Zealand, Sri Lanka, and South Africa. The tournament has two rounds. Each team plays with every other team exactly once in each round. The round begins only after each round has played. The round begins only after each team has played every other team exactly once in the first round. A team gets 3 points for every win, 1 point for every no result, and 0 point for every loss. The team are arranged in descending order of a point at the end of the two round. In the case of a tie or for deciding the ranks between two uh, or among them, then two teams, the ranks are decided by taking out a lucky draw. Okay. In the semi-final, the team ranked first plays the team ranked fourth, while the team ranked second plays the team ranked third. The two team that wins the semi-final play each other in the finals. In the semi-final, the two team that win semi-final play each other in the finals. The point table at the intermediate stage after round one of the tournament is as given below. Additional information regarding the tournament is as follows. Point number one: India won against all other team exactly once up to this point. Point number two: in the semi-final and the final, it is called an upset if a team defeats another team which is placed higher than them in the points table at the end of two rounds. Point number three कह रहा है all the matches after this point in the tournament produce result. Questions भी देख लेते हैं. Question number one कह रहा है if New Zealand wins all the remaining matches, which team definitely cannot qualify for the semi-final? Question number two कह रहा है in the seven matches played so far for Australia won against all other team except. क्वेश्चन नंबर थ्री में इफ पाकिस्तान इफ की कुछ कंडीशन दी है. क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है इन एडिशन टू द डेटा प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि ये कंडीशन को अपने को आगे लेके जाना है. ठीक है. गेम्स एंड टूर्नामेंट का राउंड रॉबिन के सेटअप पे मैच हो रहा है. ठीक है. क्या कह रहा है कि छह टीम है वो दो राउंड में सेग्रीगेट करा गया. पहले राउंड में भी छह वो आपस में मैच मैच खेली, दूसरे राउंड में भी छह वो आपस में मैच खेल रही है. एंड उनका जो स्कोर क्यूमुलेट किया जा रहा है और उसके बेसिस पे उनमें से टॉप फोर को पिक किया जा रहा है जो कि सेमीफाइनल में जाएंगी और वो आपस में मैच खेलेंगी. रैंक फोर और रैंक वन खेलेगा, रैंक टू और रैंक थ्री खेलेगा. उनके विनर्स विल प्रोसीड टू फिनाले एंड हमें वो विनर मिल जाएगा. ठीक है. अब अपने को क्या-क्या दे दिया गया, चलिए राउंड 1 में कितने मैचेस होने वाले हैं? राउंड 1 में हर टीम वुड प्ले 5 मैचेस बिकॉज़ 6 टीम्स हैं, तो यानी कि इन टोटल यू विल हैव 15 मैचेस. राउंड 2 में भी अगेन यू विल हैव 15 मैचेस. ठीक है. एंड सेमीफाइनल में यू विल हैव 2 मैचेस एंड फाइनल में यू विल हैव 1 मैच. तो यानी कि पूरा टूर्नामेंट 33 मैचेस में 33 मैचेस में समराइज़ होने वाला है. अब अपने को पॉइंट स्कोर दिया गया, कह रहा है कि अगर इफ द टीम विन्स दे गेट +3. ठीक है. इफ द टीम लूजेस दे गेट 0. इफ देयर इज नो रिजल्ट देन +1. अब ये नो रिजल्ट वाला सिचुएशन यानी कि लेट्स से बारिश हो गई तो नो रिजल्ट है. ठीक है. उस केस में 1 इज गिवन टू बोथ द टीम्स. विन किसी एक टीम को मिलेगा, लूज किसी एक टीम को मिलेगा. ठीक है. अब ऐसा होगा कि जो टॉप 4 टीम है उनको जब डिसाइड करना होगा तो ऐसा हो सकता है कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी वो टाई हो रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट स्कोर. उस केस में हम क्या करेंगे, उनको लकी ड्रॉ से निकाल के आगे लेके जाएँगे. ऐसा हो सकता है कि लेट्स से इंडिया 6, जैसे यहाँ पे देखो इस मिड सिचुएशन में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, 12-12. ऐसा हो सकता है कि इनका टोटल भी 12-12 बन जाए और तुम्हें चौथे नंबर पे किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो उस केस में यू नीड टू डू अ लकी ड्रॉ जिसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे. ठीक है. और टेबल क्या दिया हुआ है, टेबल के बारे में भी पढ़ लेते हैं. द पॉइंट टेबल एंड एट एन इंटरमीडिएट स्टेज आफ्टर राउंड 1 ऑफ द टूर्नामेंट इज गिवन. अब ये जो टेबल है ये क्या दिखा रहा है, ये सेकंड राउंड का मिड सिचुएशन की है, ये ध्यान देना. मतलब फर्स्ट राउंड हैज़ बीन कंप्लीटेड और सेकंड राउंड शुरू हुआ है. फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट हो गया यानी कि इन सब ने अपने 5 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं, तभी वो शुरू होगा. सेकंड राउंड शुरू हुआ यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ने अपने सेकंड राउंड का 3 मैच खेल लिया, पाकिस्तान ने अभी एक भी मैच नहीं खेला, साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेल लिए, न्यूजीलैंड ने अपने सेकंड राउंड का एक भी मैच नहीं खेला, श्रीलंका ने 1 खेल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 खेल दिए. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर टेबल के लिए मैंने क्या करा हुआ है, इसको ना 2 हिस्से में ब्रेक कर लिया है. 2 हिस्से में यानी कि एक बना दिया राउंड रॉबिन 1 के लिए, राउंड 1 के लिए और एक राउंड 2 के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद राउंड 1. ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे क्या पता है, इंडिया 5 टीम. ठीक है. जिसमें से 5 तो ये वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 इनमें से कोई एक है. आई एम नॉट श्योर कौन सा है. उसमें से इंडिया हैज़ वन 5 मैचेस, इंडिया हैज़ लॉस्ट 2 मैचेस, नो रिजल्ट इज़ 1. पाकिस्तान 5 पाँचों हारा है, तो वो पाँचों यही वाले होने चाहिए बिकॉज़ अभी तो ये यहाँ पे कूदा ही नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे मैच अभी तक नहीं हुआ है. ठीक?
यानी कि इंडिया ने सॉरी पाकिस्तान ने ये वाले मैचेस अभी तक नहीं खेले। और जो ये मैचेस खेले यहाँ पे पाकिस्तान लूज़ करता गया। यानी कि पाकिस्तान के ओपोनेंट जीतते चले गए। ठीक? अब ये वाला पार्ट दोनों पार्ट बहुत क्रूशियल है, ये ध्यान दो। देखो मैंने क्या करा, अब जैसे मेरे को क्या दिख रहा है, इंडिया के जो 3 मैचेस होने हैं, पहले क्या लग रहा था कि यार इन पाँचों में से किसी 3 के साथ होंगे, बट नाउ आई कैन क्लियरली सी कि वो ये वाला नहीं है, वो इन तीनों में से होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच अभी तक हुआ ही नहीं है और ये मैंने पाकिस्तान की मदद से निकाला। ठीक है। साउथ अफ्रीका 7 मैचेस यानी कि 5+2। अब वो 2 कौन से नहीं पता। न्यूज़ीलैंड अगेन 5 मैचेस यानी कि न्यूज़ीलैंड 5 मैचेस खेला यानी कि न्यूज़ीलैंड यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट किया अभी तक। एक भी मैच न्यूज़ीलैंड का नहीं हुआ है। अगर न्यूज़ीलैंड का पाँचों मैचेस नहीं हुए यानी कि ये मैचेस भी नहीं होंगे। यानी कि जो इंडिया के 3 मैचेस होने थे, देखो अब दिख रहा है 1, 2, 3 ये दिखने लग गए। यानी कि ये मैच हुआ होगा, यानी कि ये हुआ है, ये भी हुआ है। यानी कि इंडिया ने ये 3 मैचेस खेले हैं। अच्छा, फर्दर कह रहा है कि न्यूज़ीलैंड ने 5 में से 1 जीत गया है, 3 हार गया है और 1 नो रिज़ल्ट वाला है, ठीक है। न्यूज़ीलैंड 1 जीता है, ये दिख रहा है, ठीक है, वो मिल गया। अब 3 जो हारा है और 1 नो रिज़ल्ट वाला है, वो कौन-सा होना चाहिए ये निकालते हैं, ठीक। नो रिज़ल्ट या ड्रॉ वाली सिचुएशन क्या होती है, वो हमेशा 2 लोगों के बीच में होती है, ठीक है। जैसे विन में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि विन-लूज़ किसके साथ हो रहा है, बट ड्रॉ वाला थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना आसान होता है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में अगर ध्यान दो, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है जिसने 3 नो रिज़ल्ट वाले हैं। तो वो 3 अलग-अलग टीम के साथ होना चाहिए, वो 3 टीम कौन-सी होंगी? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि वो इंडिया होनी चाहिए, न्यूज़ीलैंड होनी चाहिए, श्रीलंका होना चाहिए, ठीक? यहाँ देख सकते हो? अब नाउ सम पीपल विल से कि सर व्हाई नॉट न्यूज़ीलैंड एंड श्रीलंका? अगर न्यूज़ीलैंड एंड श्रीलंका मान लो एक बार सोचते हैं कि चलो हो गया, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि देयर वाज़ अ मैच बिटवीन न्यूज़ीलैंड एंड श्रीलंका व्हिच गॉट इंटू नो रिजल्ट। तो यानी कि जो बचा हुआ इंडिया का मैच है वो साउथ अफ्रीका से होना चाहिए। बट स्टिल साउथ अफ्रीका के 2 नो रिजल्ट निकालने बाकी हैं। तो क्या वो आपस में हो रहे होंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बाय दिस लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका का था नो रिजल्ट वाला, यानी कि न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका का था नो रिजल्ट वाला। यानी कि साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड वाला था नो रिजल्ट। यानी कि न्यूज़ीलैंड बाकी जो 3 मैचेस हारा था वो यही तीनों थे। यानी कि हारा, हारा और हारा यानी कि +0, +0 ठीक है। और न्यूज़ीलैंड बाकी लोगों से हारा था तो उसके उनके जो काउंटर एंट्रीज़ है वो भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे +3 विन दे देता हूँ। ठीक, अपने पास ये भी मिल गया। तो फॉर पाकिस्तान पूरे मिल गए, न्यूज़ीलैंड पूरे मिल गए, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का 5 और 1 है ना? 6 मैचेज़ है ना? तो श्रीलंका के 5 मैचेज़ यहाँ पे हुए और श्रीलंका का जो 1 मैच है वो यहीं पे होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे एक टिक तो है ये, तो यानी कि श्रीलंका ने ये वाला मैच अभी तक नहीं खेला, यानी कि श्रीलंका के साथ ये वाले मैचेज़ अभी तक नहीं हुए। अच्छा, श्रीलंका के बारे में और क्या पता है? श्रीलंका 6 मैचेज़ में से 3 जीत जाता है, 2 हार जाता है और 1 नो रिजल्ट वाला। नो रिजल्ट वाला किसके साथ होता है? वो तो साउथ अफ्रीका के साथ होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, वो यहीं पे हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे मैं नो रिजल्ट वाला यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। तो +1 नो रिजल्ट एंड साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का +1 नो रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका के बारे में और क्या पता है? 6 में से 3 जीता है, 2 हारा है। 6 में से 3 जीता है, 2 हारा है। ठीक है, कैन आई से कंक्लूड समथिंग 1, 2, 3 इन्हीं में से कोई है जो निकालना है बिकॉज़ 1 जीता और 1 हारा निकालना बाकी है। देखो 2 जीता मिल गया है, 1 जीता 1 हारा नहीं 2 हारा और 1 जीता 1 हारा ऐसा कुछ बचा हुआ है। ठीक है, लेट्स वेट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पता था? 7 में से 4, 3, 0 तो ऑस्ट्रेलिया क्या है 7 मैचेस खेला, तो वो 7 मैचेस देखो ऑब्वियस सी बात है यही 2 होने चाहिए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, यानी कि ये यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अच्छा, साउथ अफ्रीका के लिए भी जो 7 मैचेज़ हैं वी कैन क्लियरली सी वो कौन से हैं 1, 2 और ये। ठीक।
अब इस टेबल को यूज़ करके मैंने इतनी चीज़ें यहाँ पे नोट कर ली। मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिल गया कि भाई कौन-सा मैच हुआ है, कौन-सा मैच नहीं हुआ है। अब उनका रिज़ल्ट क्या है वो अपने को डिटरमाइन अभी तक नहीं कर पाए हूँ। बट अभी मेरे को ये तो पता चल गया कि भाई ये मैचेज़ ऐसे हुए हैं यूजिंग जस्ट टेबल। ठीक? लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पॉइंट। एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या दी है? इंडिया वन अगेंस्ट ऑल अदर टीम एक्ज़ैक्टली वन्स अप टू दिस पॉइंट। इंडिया क्या है इस पॉइंट तक सबके साथ एक-एक बार जीत चुकी है। इंडिया ने टोटल कितने मैच खेले? 8 खेले, जिसमें से 2 हारा था। ठीक है, 1 नो रिज़ल्ट था और पाँचों जीता था। ठीक, यानी कि इंडिया का पाँचों के साथ विन आया होगा, तभी वो कहना चाह रहा है एग्ज़ैक्टली एक भी बार हो चुका है। ठीक, तो ये जो 5 है वो सबके साथ आया होगा जिसमें से 1 पाकिस्तान मिल चुका है, 1 न्यूज़ीलैंड मिल चुका है। एंड यहाँ पे अभी आना बाकी है, तो यानी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा, उसमें क्या रिज़ल्ट आएगा? एक तो नो रिज़ल्ट वाला होने वाला है, दूसरा मैच कौन-सा होने वाला है? विन-लूज़ वाला होने वाला है, जहाँ पे इंडिया जीती होगी और साउथ अफ्रीका हारी होगी। यहाँ पे लिख लेता हूँ, विन और लूज़ वाला होगा। ऑर्डर में लिखता हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक, ऐसे ही इंडिया का एक मैच श्रीलंका के साथ होना है, ठीक है? इंडिया का एक मैच श्रीलंका के साथ होना है। 2 मैच सॉरी, इंडिया के 2 मैच श्रीलंका के साथ में, जिसमें 1 इंडिया जीत गई होगी और 1 इंडिया हारी होगी, तभी वो 2 लूज़ निकलेगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसमें भी एक विन लूज़ निकलेगा और एक लूज़ और विन निकलेगा। ऐसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच होना था, जिसमें से एक मैच निकलेगा विन लूज़ वाला और एक निकलेगा लूज़ और विन वाला। ठीक है? सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि भाई देखो, 1 विन यहाँ मिल सकता है, 1 विन यहाँ मिल सकता है, 1 विन यहाँ मिल सकता है, तो 3 विन यहाँ मिल जाएँगे, जिसमें से 2 विन यहाँ पे आ गए, तो ये 5 विन का सम बन जाएगा। ठीक है? नो रिज़ल्ट यहाँ पे दिख रहा है, लॉस, 1 लॉस यहाँ पे मिल जाएगा, 1 लॉस यहाँ मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन-सा मैच है। मतलब वो ये वाला मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का ड्रॉ नो रिज़ल्ट वाला, या ये वाला मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का जिसमें इंडिया जीती होगी। बिकॉज़ अपने को पोस्ट मतलब ये मिड सिचुएशन है, अपने को ये तो पता नहीं कि कहाँ तक क्या हुआ है, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, इस सिचुएशन तक इंडिया सबके साथ एक-एक जीत चुकी है। ऐसा तो बोला नहीं था कि भई राउंड 1 में ही इंडिया ने सबके साथ जीत लिया था, तो हम आराम से डिटरमाइन कर पाते। ठीक है, चलो पाकिस्तान का तो सब पता था। साउथ अफ्रीका के बारे में क्या पता था? साउथ अफ्रीका 7 मैचेस खेलती है जिसमें से 3 जीत जाती है, 1 हार जाती है और 1 नो रिज़ल्ट वाला है। ठीक है, सॉरी 3 नो रिज़ल्ट वाला है जिसमें से हमने 2 नो रिज़ल्ट निकाल दिए। तीसरा नो रिज़ल्ट तो यहीं पे है, ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 1 है, ये कौन-सा है? ये तो इंडिया वाला ही तो मैच है। हमें क्या पता था कि इंडिया यहाँ पे जीतती है, तो साउथ अफ्रीका ऑब्वियस सी बात है हारी होगी। यानी कि ये जो इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका वाला है, वो या तो नो रिज़ल्ट वाला है या तो लॉस वाला है। या तो वो नो रिज़ल्ट वाला है या तो वो लॉस वाला है। ऐसे ही ये लॉस वाला है या नो रिज़ल्ट वाला है। ठीक? तो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ ये नहीं पता, और यहाँ पे ध्यान दो तो ये लॉस और नो रिज़ल्ट वाले ये 3 जो मिलने थे उसमें से 1, 2, 3 एंड लॉस भी 1 मिल गया। यानी जो बचे हुए मैचेज़ हैं साउथ अफ्रीका के वो क्या होने चाहिए? साउथ अफ्रीका विन कर गई होगी, जिसमें से देखो 1 यहाँ पे होना चाहिए था, 1 आपको यहाँ मिल गया और 1 आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है? यानी कि इनकी काउंटर एंट्रीज़ में ये हार गए। ठीक? और ये भी यहाँ पे हार गए। ठीक? ये भी मिल गया। चलो, और क्या पता अपने को? तो साउथ अफ्रीका के लिए तो हमने डिटरमाइन कर लिया काफ़ी हद तक। साउथ अफ्रीका का बस ये वाला पार्ट अपने को नहीं मिला है। श्रीलंका का ती 6 मैचेज़ है जिसमें से 3 विन है, 2 लूज़ है, 1 न नो रिज़ल्ट है। 3 विन कौन से होंगे? 1 विन, 2 विन। तीसरा विन वो है जो कि इंडिया के मैच के साथ होना चाहिए था, बिकॉज़ इंडिया के साथ वो 1 जीत जाता है और 1 हार जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? लूज़ और विन में से कुछ एक, विन और लूज़ में से कुछ एक। यानी कि यहाँ पे अपने को जो श्रीलंका का 3 विन थे वो 1, 2 और इनमें से बचा हुआ तीसरा विन मिल जाएगा, जो श्रीलंका का 1, 2 लूज़ था। 1 यहाँ से लूज़ मिल जाएगा और 1 लूज़ यहाँ पे आना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? विन आना चाहिए था। ठीक है? अच्छा, ये भी पार्ट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या पता था? 7 में से 4 जीता, 3 हारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी यही पता है कि एक तो वो इंडिया विन लूज़ वाला होने वाला है, यानी कि यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, लूज़ और ठीक है? यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। लूज़ और विन वाला और विन और लूज़ वाला। ठीक है?
अच्छा, और क्या पता था? ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 और 3 है ना, तो जिसमें से 1 विन, 2 विन, तीसरा विन और चौथा विन तो यहीं में से कोई एक आएगा और कितने लूज़ है? 3 लूज़ हैं। 1 लॉस्ट, ठीक है, दूसरा लॉस्ट और बचा हुआ लॉस्ट आना चाहिए था, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 यूज़ करके सोचो मैंने ये टेबल का ये तो डिटरमाइन कर लिया कि इनका आउटकम रफली क्या होने वाला है। मतलब इसमें देखो 90% का तो वो भी मिल गया आउटकम क्या होने वाला है। इनकी काउंटर एंट्रीज़ यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या पता है? तो ये वाला पार्ट था। इधर भी कर देते ना सही रहेगा अपने पास। ठीक है? ये चीज़ हमने यहाँ पे भी नोट कर ली है। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है एंड उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ द न्यूजीलैंड विन्स ऑल द रिमेनिंग मैचेस अगर न्यूजीलैंड बचे हुए मैचेस जीत जाती है, न्यूजीलैंड बाकी कितने मैच बचे? 5 मैच बचे हैं। पाँचों मैच में मतलब न्यूजीलैंड का स्कोर क्या बन जाएगा? 4 यहाँ पे और पाँचों जीतने की वजह से क्या बन जाएगा न्यूजीलैंड का स्कोर? न्यूजीलैंड का स्कोर बन जाएगा +19 ठीक? कैसे? भाई 5 मैच है 5 3 ज़ा 15 प्लस रिमेनिंग स्कोर यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, इफ न्यूजीलैंड विन्स द रिमेनिंग मैचेस व्हाइल टीम डेफिनिटली कैन नॉट और डेफिनिटली दोनों वर्ड दिया हुआ है। क्वालीफाई फॉर द सेमीफाइनल कौन सी टीम ऐसी है जो डेफिनिटली हम कह सकते हैं वो क्वालीफाई नहीं करेगी, ठीक है? डेफिनिटली कैन नॉट क्वालीफाई। श्रीलंका, श्रीलंका का क्या बन सकता है? श्रीलंका के बारे में अपने को पता है कि दे हैव 10 सो फार दे हैव स्कोर्ड 10 ठीक है। श्रीलंका के पास कितने बचे हैं? 1, 2, 3, 4 ये चारों में से अगर मान लो न्यूजीलैंड वाला हार गई, बचे हुए तीनों जीत जाती है तो पॉसिबल स्कोर क्या बन सकता है? 19 बन सकता है, ठीक है। अच्छा, यार ये दोनों में कॉम्पिटिशन हो सकता है, ये दोनों ऐसा हो सकता है कि भाई लकी ड्रॉ में ये लोग पहुँच जाए बिकॉज़ अभी तक क्या है कि 16 जैसा स्कोर बन रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में क्या पता है? पाकिस्तान का स्कोर क्या है? 0, 0, 0 का मतलब अ, यहाँ पे न्यूज़ीलैंड से हारी होगी तो बचे हुए चारों मैचेस जीत जाती है, तो पाकिस्तान अगर 12 पे पहुँच गई तो फिर टाई हो सकता है। मतलब ऐसा सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान 12 पे है, साउथ अफ्रीका भी 12 पे है और ऑस्ट्रेलिया भी 12 पे है। तो वहाँ पे अपने को तो वो करना पड़ेगा, लकी ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज़ मतलब देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ना बिकॉज़ वो कंडीशन बहुत नहीं थी और डेफिनिटली वर्ड यूज़ किया तो हमें एलिमिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन मतलब आइडेंटिफाइंग। अगर ये कुड भी होता तो मैं इसको दूसरी तरीके से अप्रोच करता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफिनिटली कैन नॉट तो मैं चाहूँगा कि हर ऑप्शन को मैं हटाते जाऊँ, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के भी यार यही सेम प्रॉब्लम है। मान लो ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस हार गया बचे हुए हैं, ऐसा। साउथ अफ्रीका भी सारे मैचेस हारी और पाकिस्तान सारे मैचेस जीत गया। तो 3 टीम ऐसी हो जाएँगी जो कि 12-12, 12 पे बैठी होंगी, ठीक है? तीनों टीम 12-12, 12 पे बैठी हुई है तो मतलब जो 4, 5, 6 है, उसमें ये है। तो उसमें हो सकता है लकी ड्रॉ निकालना पड़ेगा। तो मतलब नो सच टीम का आंसर करना पड़ेगा बिकॉज़ ये जो वर्ड था डेफिनिटली वाला इसने तुम्हें परेशान करा। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते तीनों में से कि कोई टीम ऐसी होगी जो डेफिनिटली एलिमिनेट हो ही जाएगी प्रोसेस में से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 2 इन द 7 मैचेस प्लेड सो फार अ, सो सॉरी इन द 7 मैचेस प्लेड सो फार ऑस्ट्रेलिया वन अगेंस्ट टीम एक्सेप्ट ये, ठीक है? अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचेस खेले? 7 मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया किससे नहीं जीता है ना? वन अगेंस्ट ऑल अदर टीम एक्सेप्ट ये। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला तो जीता भी है, हारा भी है, तो इंडिया नहीं होगा। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी नहीं जीता, यहाँ पे भी नहीं जीता, तो आंसर क्या होना चाहिए? साउथ अफ्रीका होना चाहिए। बाकी का चेक कर सकते हो, न्यूज़ीलैंड, देखो यहाँ पे जीता हुआ है, श्रीलंका जीता हुआ है, तो आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे भी बिकॉज़ अपने को दोनों राउंड में दिख रहा है कि वो हार गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 इफ पाकिस्तान विन्स ऑल द रिमेनिंग मैचेस एंड साउथ अफ्रीका विन्स ऑल द रिमेनिंग मैचेस। अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने क्या नोटिस करा था, ये कंडीशन आगे भी फॉरवर्ड हुई थी। इन एडिशन टू द डेटा प्रोवाइड ठीक है, अब ये कंडीशन को मैं ऑपरेट कर दूँ पूरे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना ना मतलब जैसे क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ था ये सारी चीज़ें भरी हुई थी। अब मेरे को ये कंडीशन को मैं क्या करूँगा इसको नोट डाउन कर लूँगा क्योंकि 3 और 4 दोनों में यूज़ होने वाली है तो आराम से कर सकते हैं। अगर केवल 3 में होती तो शायद ये ट्रिकी बन जाता मतलब फिर बहुत मेहनत माँगता। क्वेश्चन नंबर 3 पाकिस्तान विन्स ऑल द रिमेनिंग मैचेस एंड साउथ अफ्रीका विन्स ऑल द रिमेनिंग मैचेस। अच्छा, पाकिस्तान सारे मैचेस जीत गई। पाकिस्तान जीतने का मतलब +3 यानी कि पाकिस्तान का स्कोर क्या बन जाएगा? +15 बन जाएगा, ऐसा?
ठीक। एंड साउथ अफ्रीका विन्स ऑल द रिमेनिंग मैचेस। साउथ अफ्रीका रिमेनिंग मैचेस जीत जाती है। साउथ अफ्रीका के जो रिमेनिंग मैचेस है वो कौन से हैं? इनके जरा काउंटर एंट्री कर ले, +0। एंड क्या था कंडीशन? इफ पाकिस्तान विन्स एंड साउथ अफ्रीका था ना, साउथ अफ्रीका के लिए +3 दे देते। ठीक है। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो बाकी 2 मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका ने हरा दिया लोगों को। तो साउथ अफ्रीका का स्कोर क्या बन जा रहा है? यहाँ पे 6 ऐड होने की वजह से साउथ अफ्रीका का स्कोर था 12, अब बन गया साउथ अफ्रीका का +18। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास क्या बच रहा है? अब पूछा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। अभी इंडिया का स्कोर क्या है? 16 है। इंडिया का बेस्ट पॉसिबल स्कोर क्या बन सकता है? 16 + 3 19 या 16 रह सकता है। ठीक है। क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ था, कंडीशन नंबर 3 ये बोली थी कि ऑल द मैचेस आफ्टर दिस टूर्नामेंट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। इस पॉइंट के बाद जितने भी मैचेस हैं वो रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो स्कोर है वो 16 और 19 में से कुछ एक बनना चाहिए। ऐसा? मतलब इंडिया 16 बना चुकी है। इंडिया अगर यहाँ पे जीत जाती है तो 19 बन जाएगा, इंडिया अगर हार जाती है तो 16 रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अ, साउथ अफ्रीका का हमने लिख लिया था। न्यूज़ीलैंड का अपने को क्या पता है? न्यूज़ीलैंड के 2 मैचेस के अभी तक आने बाकी, तो न्यूज़ीलैंड का स्कोर कितना मिला हुआ था? न्यूज़ीलैंड का स्कोर था 4। ठीक है, तो न्यूज़ीलैंड का स्कोर क्या बन सकता है? 4 बन सकता है, 7 बन सकता है और 10 बन सकता है, ऐसा। क्योंकि वो या तो ये जीता होगा तो, या तो ये जीता होगा तो, ऐसा कुछ। 4, 7 और 10। श्रीलंका का स्कोर क्या बन सकता है? श्रीलंका का सो फार स्कोर ऑफ श्रीलंका इज़ 10। तो 10 के बाद 2 और आ सकता है, तो मतलब या तो 10 बन सकता है, या तो 13 बन सकता है, या तो 16 बन सकता है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या बन सकता है? 12 है। 12 के बाद 12, 15, 18। 12, 15 और 18। ठीक। हमने क्या करा, ये इनके पॉसिबल स्कोर भी साइड में लिख दिए। क्योंकि है क्या ना कि अपने को जो एलिमिनेशन होना है वो स्कोर के बेसिस पे ही होना है। अब चलते हैं जो इन्होंने पूछा हुआ है कंडीशन। ठीक है, इसके लिए थोड़ा कलर कोड चेंज कर लेते हैं। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If Australia wins against Sri Lanka in the second round, we will have sufficient information to determine all the 4 सेमीफाइनल। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाने का मतलब, अब हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका का जो बेस्ट स्कोर है क्या बन सकता है? श्रीलंका का बेस्ट स्कोर, ऑस्ट्रेलिया विन्स अगेंस्ट श्रीलंका, तो ऑस्ट्रेलिया का जो बेस्ट सॉरी श्रीलंका का बेस्ट स्कोर 10 और 13 होना चाहिए। ठीक। बिकॉज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया हरा देती श्रीलंका को, तो श्रीलंका अब 16 नहीं बन सकता। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या होना चाहिए? प 15 और 18 होना चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैज़ नाउ वन दिस मैच, तो वो 12 नहीं 15 या 18 में से हो सकता है। ठीक। अब वी कैन आल्सो से दिस कि भाई साउथ अफ्रीका ऐसी है जो कि अभी सबसे ऊपर है, 19 पे है। ठीक है? तो क्या कहते हैं, सॉरी, साउथ अफ्रीका इज़ एट 18। ठीक। अच्छा, तो अब मेरे को यार दिख रहा है यहाँ पे कि यार अगर मेरे को सारे सेमीफाइनल निकालने हैं चारों, तो कैन आई से दिस कि भाई ये देखो ये क्या हो सकता है, ये 13 पे है, ये 15 पे है, ये 12 10 13 है, ये 4 7 10 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 16 19 है। ठीक है। अब यहाँ पे यार दिख रहा है ना कि यार मतलब वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा? मान लो अगर इंडिया यहाँ पे हार जाती है, तो ये वाला काउंट हो जाएगा। यहाँ पे ये 15 तो है ही है, यहाँ पे ये है ही है, तो मतलब आई कैन हैव 1 2 3, ठीक है, 4, ये चारों अपने को सेमीफाइनलिस्ट दिख रहे हैं। मतलब श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड का कितना था? 1 2 3, ओके, यहाँ पे ना एक और लिख लो। यहाँ पे 13 होना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि श्रीलंका के 3 मैचेस आने बाकी हैं, तो 4 7 ती 13, ठीक है। स्टिल इफ यू चेक, तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि श्रीलंका, अरे न्यूज़ीलैंड को अगर 13 भी मिलता है, तो ऐसा होगा कि जो 5th और 6th स्पॉट है वहाँ पे क्लियरली यहाँ पे टाई हो रहा है। ठीक है, जो कि हमें उससे मतलब नहीं है। अपने को जो टॉप 4 चाहिए वो देखो दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक होगी 15-18 में से कोई एक। ठीक है, इंडिया 16-19 की वजह से होगी, साउथ अफ्रीका तो है ही, एंड पाकिस्तान 15 की वजह से है। यानी कि इफ वी यूज़ द कंडीशन, पॉइंट नंबर 1 इज़ परफेक्टली ट्रू। ठीक। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 यूज़ करते हैं। श्रीलंका विन्स बोथ द रिमेनिंग मैचेस इन द सेकंड सेकंड राउंड। अगर श्रीलंका दोनों जीत जाती है, अगर श्रीलंका दोनों जीत जाती है, यानी कि ये 13 और 16 जैसा लॉजिक होना चाहिए था। यानी कि अब क्या होगा, साउथ अफ्रीका का तो फिक्स्ड है, पाकिस्तान का फिक्स्ड है,
पाकिस्तान का कितना था? 15, ठीक है। ये 2 टीम का तो फिक्स्ड है। अब ज़रा देखते हैं श्रीलंका ने जो दोनों हराया है, किसको हराया है? एक न्यूज़ीलैंड को हराया और एक ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो ऑस्ट्रेलिया का अब जो स्कोर बन सकता है, वो क्या बन सकता है? वो 12 या 15 में से कुछ एक बन सकता है, ठीक है। न्यूज़ीलैंड को हराया है, न्यूज़ीलैंड का स्कोर क्या बन सकता है? न्यूज़ीलैंड का स्कोर बन सकता है अब 4, 7, 10 में से कुछ एक, क्योंकि वो उसने हरा दिया तो श्रीलंका वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अच्छा, और कौन बच रहा है अपने पास? एक टीम कौन-सी बच रही है? इंडिया बच रही है। तो इंडिया के लिए अपने पास 16 और 19 है, ठीक है। तो अगर मेरे को 4 टीम निकालनी, तो वो 4 टीम कौन-सी होनी चाहिए, ज़रा ये देखते हैं ना। देखो, एक तो वो ये होगी, ये हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यार, 1, 2, 3, 4, 5 कौन-सी टीम एक रह रही है ना। श्रीलंका के लिए नोट नहीं कर रहा। श्रीलंका का स्कोर क्या होना चाहिए था? 13 और 16। तो श्रीलंका का भी स्कोर क्या होना चाहिए था? 13 और 16, ठीक है। अब यार ये देख रहे हो ना, यहाँ पे तो यार 15-15 और ये वाला पूरा टाई होते जा रहा है। तो यार यहाँ पे डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो ये वाला जीत गया, तो अगर लेट्स से श्रीलंका यहाँ पे जीत जाती है, क्या बोला था? श्रीलंका ने तो जीता ही है ना दोनों मैचेस। फिर से वो कंडीशन पढ़ लेते हैं, श्रीलंका विन्स बोथ द रिमेनिंग मैचेस। अच्छा, ये तो यहाँ पे परफेक्ट मिला हुआ है। तो यानी कि अगर दोनों मैच जीत गए, तो यानी कि यहाँ पे 16 तो आना तय है, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो 16 तो इसका, अभी एक ये टीम होनी चाहिए, दूसरी ये टीम होनी चाहिए, ठीक है, तीसरी ये टीम होनी चाहिए। अब चौथी टीम के लिए अपने पास श्योर नहीं है, क्योंकि यार देखो ऐसा है ना कि एक ये मिल गई साउथ अफ्रीका, ठीक है। अ, दूसरी ये मिल गई, तीसरी इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। चौथी के लिए यार पंगा है, वो इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अपना स्कोर टाई होता हुआ दिख रहा है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो मैच है, अगर इंडिया जीत जाती है, ठीक है, इंडिया जीत जाती है अगेंस्ट विच टीम? न्यूज़ीलैंड नहीं, यहाँ पे यार ये ऑस्ट्रेलिया का किसके-किसके साथ मैच बचा है? 12 और 15। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच बच रहा है, वो किसके साथ बच रहा है? श्रीलंका के साथ और न्यूज़ीलैंड के साथ। अगर न्यूज़ीलैंड यहाँ पे एक मैच हार जाती है, तो ये भी 15 बन जाएगा, पाकिस्तान का भी 15 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लकी ड्रॉ निकालना पड़ेगा। तो यार ये चीज़ बहुत श्योर शॉट नहीं बता सकते, क्योंकि ना अपने को ये पूछा हुआ है कि भाई परफेक्टली ट्रू बताना है, ये ध्यान देना, ठीक है। न्यूज़ीलैंड विन्स डेफिनिटली कैन नॉट क्वालीफाई फॉर द सेमीफाइनल। ऐसा है क्या? अगर अभी तक का स्कोर देखें तो कर सकते हैं क्या? 13, 12 और 13, हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो परफेक्टली नॉट ट्रू। यानी क्या होना चाहिए? खाली एक स्टेटमेंट नंबर 1 था जो मेरा परफेक्टली ट्रू था। ऑप्शन नंबर बी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। सुपर टफ क्वेश्चन, मतलब सी कैटेगरी क्वेश्चन, सी प्लस प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन, मतलब पेपर में इतना ऐसा कैलकुलेट करना वुड बी वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एडिशन टू द डेटा प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इट इज नोन दैट इंडिया फिनिशेस द 2 राउंड स्टेज इन द थर्ड पोजीशन, ठीक है। इंडिया ने क्या करा, जो 2 राउंड अपने खत्म किए वो थर्ड पोजीशन पे खत्म किए। अच्छा, चलो थोड़ा इसके लिए जगह बना लेते हैं ना। In addition to the following data provided in the previous question, it is known that India finishes the 2 राउंड इन द थर्ड पोजीशन, ठीक है। अगर इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, तो अभी इंडिया का मतलब देखो, इंडिया या तो 16 पा सकती थी या तो 19 पा सकती थी। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया थर्ड पे, अगर 19 आई होती तो इंडिया टॉप पे हो सकती थी। यानी कि टॉप पे ये होनी चाहिए थी, या अगर ये थर्ड पे, तो ये 16 वाला स्कोर होना चाहिए था, बिकॉज़ नो वन कैन स्कोर मोर देन 19। ये वाला सिचुएशन हम नहीं ले सकते, तो अपने को ये सिचुएशन लेनी पड़ती। यानी कि इंडिया का स्कोर होना चाहिए था थर्ड नंबर पे, इंडिया होगी विथ स्कोर ऑफ 16, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पे किसको होना चाहिए था? 16 से ज़्यादा पाने वाले। 16 से ज़्यादा पाने वाले कौन है? एक तो ये टीम है 18 वाली, और कोई टीम है? एक ये दोनों में से कोई एक टीम बन सकती थी। अब यहाँ पे देखते हैं ना, एक तो ये टीम है और एक इन दोनों में से कोई एक टीम बन सकती थी। ठीक है? या तो ये 18 वाला बन जाता, या ये 16 वाला बन सकता था। मतलब ऐसा हो सकता था कि अ,
श्रीलंका ऑल्सो गॉट 16, ऐसा समझते हैं ना, श्रीलंका को 16 मिल गया एंड जस्ट बिकॉज़ श्रीलंका गॉट 16 तो उसका और इंडिया का टाई हो गया था जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा हो गया कि भई मतलब इंडिया और क्या था 16 है हाँ, अगर 16 ले लेते तो टाई हो जाता फॉर सेकंड एंड थर्ड पोज़ीशन तो वहाँ पे हम लकी ड्रॉ से हमने शायद इंडिया को रिवॉर्ड कर दिया सॉरी श्रीलंका को रिवॉर्ड कर दिया बेटर रैंक, ठीक है। अच्छा अ, साउथ अफ्रीका के लिए तो फॉर श्योर अपना पक्का है, इसको भी यार राउंड 2 वाला पार्ट हटा लेते ताकि अपने पास पूरी जगह रहे। साउथ अफ्रीका कितने पे थी? 18 पे थी, ठीक है। इंडिया का क्योंकि 16 लिया तो इंडिया कौन-सा मैच बच रहा था? इंडिया के पास एक ही मैच बच रहा था, वो इंडिया हार गई होगी ना, तभी तो वो 16 आया, यानी कि ये वाला मैच इंडिया लूज़ कर गई होगी, जिसकी वजह से इंडिया को +0 मिला है। अब यार थोड़ा ये ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +0 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया को 16 मिल गया होगा, ठीक है। यानी कि इंडिया और न्यूज़ीलैंड वाले मैच में इनको +3 मिल गया है, यानी कि न्यूज़ीलैंड का अब जो स्कोर बन रहा है वो 1, 2, 3 यानी कि अब इंडिया न्यूज़ीलैंड का स्कोर 7, 10, 13 में से कुछ एक बन सकता है, ठीक, ऐसा? अच्छा अ, अब अपने पास कौन है जो उसको पंगा कर सकता था, वो था ये दोनों ना, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में से एक। अब श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में से कोई एक जीतेगा तो वो 16 पे बन जाएगा, ठीक है? मतलब अगर मान लो श्रीलंका जीती होगी तो वो 16 पे बन जाएगी, अगर साउथ अफ्रीका जीत गई होगी बाकी सारे मैचेज़ तो 18 पे बन जाएगी, ठीक है? रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनिटली ट्रू? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया विन्स द चैंपियनशिप ट्रॉफी ओनली इफ देयर इज ओनली वन अपसेट इन द टूर्नामेंट। अब अपसेट की कहानी क्या बोला हुआ है? इन द सेमीफाइनल एंड द सेमीफाइनल इट इज कॉल्ड एन अपसेट, ठीक है? इफ अ टीम defeats another team which is placed higher than in the point table at a point in the round table in the end of the tournament, ठीक है? अच्छा ऐसा है। अब ऐसा होगा ना कि भई इन इंडिया विन्स द चैंपियनशिप टूर्नामेंट ओनली इफ देयर इज ओनली वन अपसेट। एक अपसेट होगा, ओनली इफ देयर इज वन अपसेट। मतलब ऐसा होगा कि यार फिर उस केस में तो यार अ, अगर ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं तो मतलब ये कहना चाह रहा है क्योंकि नाउ ये रैंक 3 पे है, तो यानी कि अब जो मैच होना चाहिए था वो रैंक 1 और रैंक 4 का होना चाहिए था, ठीक है? ये रैंक 2 और रैंक 3 को होना चाहिए था। यानी कि अब जो मैच होगा वो अगर इंडिया फाइनल जीत रही है, इंडिया विन्स द चैंपियनशिप यानी कि रैंक 3 का होना चाहिए था किसके साथ? रैंक 1 और रैंक 4 में से किसी एक के साथ। प्रॉब्लम क्या अगर कह रहा है कि इंडिया विन्स द चैंपियनशिप ओनली इफ देयर इज ओनली वन अपसेट इन द टूर्नामेंट। अगर एक अपसेट हो गया वो तो यहीं पे हो जाएगा ना, तभी तो इंडिया को आगे लेके जा पाओगे, वरना इंडिया तो आगे जा ही नहीं पाएगा। और अगर इंडिया यहाँ पे चला भी जाता है, एक अपसेट, तो यहाँ पे मैच किसके साथ पड़ेगा? या तो रैंक 1 के साथ या तो रैंक 4 के साथ। रैंक 4 का मतलब यहाँ पे अपसेट कराना पड़ेगा तब वो रैंक 4 बना होगा। और अगर रैंक 1 के साथ मैच होगा तो फिर अपसेट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ समथिंग जो कि डेफिनिटली ट्रू नहीं है। ठीक है? यानी कि दिस इज़ फॉल्स। अच्छा देखो अब यहाँ पे ना अपने को स्कोर का मतलब ही नहीं था, हम इतना मेहनत कर रहे थे उसका यूज़ ही नहीं आया। इफ ऑस्ट्रेलिया विन्स द चैंपियनशिप टूर ट्रॉफी, अगर ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत जाती है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने का मतलब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर ये है 12, 15, 18 ठीक है? दे मस्ट हैव वन एट लीस्ट 4 कंसेक्यूटिव मैचेस। अगर ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, तो 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जीती होगी। हाँ, 1, 2 समझना। अगर ये दोनों नहीं जीतेगी, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये 16 पे है। 16 के बाद देयर इज़ ऑलरेडी पाकिस्तान 15 पे, ठीक है? समझ रहे हो ना ये वाला पॉइंट है। अब पाकिस्तान दे मस्ट हैव वन एट लीस्ट 4 कंसेक्यूटिव, एट लीस्ट 4 कंसेक्यूटिव ना। तो 1, 2 लास्ट के 2 और वो तो दोनों जीतने पड़ेंगे अगर वो टूर्नामेंट जीता है बिकॉज़ बाकी 2 तो नॉकआउट हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे करने का मतलब यहाँ पे +3 किसी एक को मैं हटा सकता हूँ क्या ये चेक करते हैं। अगर 12, 15, 18 है ना, ठीक है? 12 तो नहीं होने वाला फॉर श्योर ये पक्का है। 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। 15 में क्या प्रॉब्लम है? 15 का टाई होने वाला है, ठीक है? 15 का टाई हो सकता है, 15 का टाई हो सकता है, ठीक है? और 18 हो सकता है। ऑल्सो अगर ये दोनों मैचेस जीत गया है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस जीतने का मतलब अ, ये दोनों बाहर हो गए होंगे बिकॉज़ उस केस में इनका बन गया होगा 13
एंड इनका बन जाएगा ऐसा कुछ इधर, ठीक है? इनका तो अपने पास क्या हो जाएगा, पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाएगा। तो उस केस में थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे ना, इफ ऑस्ट्रेलिया विन्स द चैंपियनशिप ट्रॉफी देन दे मस्ट हैव वन एट लीस्ट 4 कंसेक्यूटिव मैचेस। ये जीतेगा, ये जीतेगा, अगर मतलब इसको अगर 3 कंसेक्यूटिव नहीं दिलाते, मतलब इनमें से कोई अगर एक हरा देते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो चेक करते हैं। अगर मान लो एक हार जाता है, तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अगर ये 15 है, तो पाकिस्तान भी 15 है, ठीक है? फिर यार हम ना डेफ़िनेटली नहीं बता सकते, ठीक है? डेफ़िनेटली में क्या होगा फिर ना, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टाई हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये स्टेटमेंट को डेफ़िनेटली ट्रू होना ज़रूरी होगा, तभी वो पूरा आगे ट्रू होगा, ठीक? श्रीलंका कैन विन द चैंपियनशिप ट्रॉफी ओनली इफ देयर आर 2 अपसेट इन द टूर्नामेंट। ठीक है, श्रीलंका कैन विन द चैंपियनशिप ट्रॉफी ओनली इफ देयर आर 2 अपसेट इन द टूर्नामेंट। श्रीलंका तभी जीत सकती है। तो यार हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि श्रीलंका का जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, वो 16 बन रहा है, ठीक है? या 13 बन रहा है, ऐसा हो सकता है। ये 13-16 में से कुछ एक बनना चाहिए। अगर इसको 13 तो नहीं, 16 वाला ही लेना पड़ेगा। और 16 में भी क्या है कि भाई ये 16 अगर वो फाइनल में जाने वाला है और फाइनल में चला गया, तो उसकी रैंक 3-4 में से कुछ एक होगी और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, यू कैन नॉट हैव रैंक 2। नहीं, रैंक 2 दे सकते क्या? अ, अगर रैंक 2 होगी तब भी रैंक 2 और 3 का मैच बचेगा। क्या बोला हुआ है, फिर से लाइन पढ़ लेते हैं। श्रीलंका विन द चैंपियनशिप ट्रॉफी ओनली इफ देयर आर 2 अपसेट इन द टूर्नामेंट। फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। श्रीलंका विन्स द चैंपियनशिप, श्रीलंका चैंपियनशिप जीत जाएगी। 10, 13 और 16, मतलब श्रीलंका को अपने को फाइनल में लेके जाना है। फाइनल में कब जाएगी श्रीलंका, जब 16 के आस-पास होना चाहिए। अगर ये वाला होता है 16 वाला स्कोर, तो 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, 18 एक यहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ 16 है, तो ये 15 बनेगा। उस केस में 15 और 15 का टाई हो जाएगा, यानी कि चौथे स्पॉट के लिए टाई है। तो उस केस में रैंक 2 होगा कौन? श्रीलंका होगा, ठीक है? एंड क्योंकि यहाँ पे अपसेट कराना होगा 1, ठीक है? ओनली इफ देयर आर 2 अपसेट। अ, यार ये डेफिनिटली ट्रू नहीं है, क्योंकि रैंक 2 और रैंक 3 का मैच होगा। रैंक 2 वाले में तो बिना अपसेट कराए हम आगे लेके जा सकते हैं, अगर वो अपसेट करा ही देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर रैंक 2 को आगे जिताना है, हाँ, ये बात सही है, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी द करेक्ट। क्यों? अब ये समझना। सुपर टफ क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा दिमाग एकदम हिला के रख दिया इसने आज। क्या था, श्रीलंका विन द चैंपियनशिप ट्रॉफी ओनली इफ देयर आर 2 अपसेट। अब देखो मैंने क्या देखा, पॉसिबली मेरा जो पूरा फिक्सचर बन रहा है, वो बन रहा है कि ये रैंक 1 हो जाएगा, ठीक है? ये रैंक 3 हो जाएगा, ये तो पता ही है, ठीक? ये रैंक 2 बन जाएगा। तो अब अगला मैच क्या होगा? रैंक 1 और रैंक 4 के साथ, रैंक 2 और रैंक 3 के साथ, ठीक है? अगर मेरे को यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? यहाँ पे श्रीलंका जीत ही जाएगी, क्योंकि बिना अपसेट कराए। बट यहाँ में से तो यार अपसेट अगर होता है, तभी वो रैंक 4 आगे जाएगा। बट लेकिन यार बात तो सही है। तो यार ये वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो डेफिनिटली ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट डेफिनिटली ट्रू, ठीक है? Pakistan can win the championship trophy only if there are at least 2 upset in the tournament. Pakistan can win the championship trophy only if at least there are 2 upset in the tournament. एट लीस्ट मतलब कम से कम। पाकिस्तान का यार कहाँ पे, पाकिस्तान का बेस्ट स्कोर 15 बनना है, तो पाकिस्तान की बेस्ट रैंक 4 बन सकती है। ये तो यार परफेक्टली ट्रू है। पाकिस्तान तभी जीत पाएगा बिकॉज़ रैंक 1 विल प्ले अगेंस्ट रैंक 4। यहाँ पे एक अपसेट कराना पड़ेगा, और रैंक 2, रैंक 3 में से कोई भी अपसेट अगर होता है ना? रैंक 2, रैंक 3 में से कुछ भी होता है, वो आगे जाएगा, वो रैंक 4 के साथ खेलेगा। तो यानी कि एक अपसेट और कराना पड़ेगा, यानी कि ये परफेक्टली ट्रू है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी डेफिनेट हैं, तो डेफिनिटली ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 स्टेटमेंट है, यानी कि बी और डी, जो कि डेफिनिटली ट्रू हैं। अ, हाइली मतलब सुपर डिफिकल्ट सेट। सेट में देखो डिफिकल्टी नहीं है, बट यार पेपर वाले फेज़ में इनको कर पाना एकदम ना के बराबर है। मतलब मैं तो ये पेपर वाले फेज़ में नमस्ते कर देता। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि देखो इसका जो फर्स्ट हाफ था, जहाँ पे अपने को खाली फिक्सर आइडेंटिफाई करना, जहाँ पे केवल क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करना था, दैट वाज़ बेयरेबल। बट क्वेश्चन नंबर 3-4 तो बहुत टफ था, ठीक है? अ, बट पेपर वाले में ये 25 मिनट खा जाएगा, प्रॉब्लम ये भी है, और ज़्यादा टाइम खा सकता है। तो मतलब देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि तुम इसी सेट को करके अपना टाइम खराब कर ले जाओ, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।